تعلیم کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ نہ صرف بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ بچیاں بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں تفریق نہ کریں، ہمارے بچے بچیاں دونوں علم سے بہرہ مند ہوں، بلکہ بچیوں کے تعلیم یافتہ ہونے سے اور گھر کے پورے ماحول پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس دن کسی دوست نے یہاں ذکر کیا تھا کہ وہ اس کی ہمشیرہ تھی، اس کو علم کا شوق تھا، پھر وہ کوئی دینی تعلیم فقہ حدیث پڑھنا چاہ رہی تھی، تو انہوں نے پھر کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ نکالا۔ تو یہاں چونکہ دوست بچیوں کے مدرسے کا انتظام کر رہے ہیں، تو ان سے یہ ایسے گزارش ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ آن لائن بھی کچھ بندوبست یہ دوست کر سکیں، ہمارے استاد جو پڑھاتے ہیں، کہ اگر کوئی ایسی بچیاں جو دور رہتی ہیں اور ان کا شوق ہے، وہ دلچسپی ہے اور وہ پڑھنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے مواقع ہوں۔ بنیادی طور پر جو مسائل ضروریہ کا علم کافی ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر ایک جان پر، ہر ایک نفس پر، ہر انسان پر اتنا ہی بوجھ اللہ ڈالتا ہے جتنی اس کی حیثیت ہے، جتنی اس کی سکت ہے۔ بنیادی طور پر ضروری تعلیم کافی ہے، جس میں جو ہمارے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ چیزیں ہمیں آئیں، نماز عید آ جائے، نماز جنازہ آ جائے، یا اس طرح کی ضروری چیزیں، یہ کافی ہیں۔ لیکن آج کے مروجہ دور میں کافی ساری کتابیں مختلف ناموں سے چھپ چکی ہیں، پھر وہ بچوں میں بھی شوق پڑتا ہے کہ بھائی یہ بھی کتاب پڑھیں، یہ بھی کتاب پڑھیں، یہ بھی کتاب پڑھیں۔ تو اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں کہ ان کی خدمت میں تشریف لاتے تھے جو نوواردین، تو ان کو چند باتیں بتاتے تھے جو بنیادی دین کی بنیادی چیزیں ہیں۔ تو پھر وہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو آپ فرماتے تھے یہی آپ کے لیے کافی ہیں۔ پھر پوچھتے تھے اگر ہم کہیں دور ہوں اور پھر ہمیں کوئی نئی چیز درپیش آئے ہو، ہمیں علم نہ ہو، تو ہم کیا کریں؟ کیونکہ اس وقت تو یہ موٹر کاریں، ہوائی جہاز نہیں تھے اور دور دراز سے لوگ آتے تھے، تو ہم کیا کریں؟ ان کا جواب، ان کا سوال ایک اہمیت رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا، جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں وہ تو آپ نے سن لی، اگر کوئی نئی چیز آپ کے سامنے آئے اور آپ کو علم نہ ہو تو پھر اپنے دل سے پوچھ لیجئے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دین آسان ہے، دین کتابوں کا نام نہیں ہے، بڑے بڑے موٹے موٹے کتاب دین ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ ہاں، اس سے کچھ معلومات ملتی ہے۔ دین کا تعلق جو ہے وہ ہمارے رویوں سے ہے، ہمارے اخلاق سے ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس سے ہے۔ دین کا تعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے اس سے ہے، جو انسان بستے ہیں، ہم روزمرہ ان سے ملتے جلتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس سے ہے۔ دیکھیے، وہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم سجدہ کرو میرے اس پیارے پیغمبر کو، جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو اس نے انکار کیا تھا، اور حالانکہ وہ عالم تھا، علم رکھتا تھا، اور وہ یہاں تک آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے بڑوں کا استاد تھا، بڑے بڑوں کا استاد تھا، بڑے بڑے ان سے تعلیم سیکھتے تھے، اس نے انکار کر دیا۔ علم تھا، سب کچھ تھا، انکار کر دیا۔ تو پھر وہ سارا مکالمہ قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پوری
वो चीज़ बयान फरमा दी। पूछा गया क्यों तुम सजदा, मैं तुझे हुक्म फरमा रहा हूँ, अल्लाह ताला ने कहा मैं तुझे हुक्म फरमा रहा हूँ, तुम क्यों सजदा नहीं करते हो? तो उसने कहा मैं इनसे अच्छा हूँ, ये मुझसे अच्छे नहीं है, मैं इनसे अच्छा हूँ। अब इसमें वो तकब्बुर आ गया, तकब्बुर आ गया। वो जो सैदी ने कहा है कि तकब्बुर अज़ाज़ील रा ख्वार करत, बजिंदान लानत गिरफ्तार करत। तकब्बुर ने अज़ाज़ील को ख्वार कर दिया और हमेशा के लिए लानती होने का तौक अपने गले में उसने डाल दिया। कुरान मजीद में शैतान पर ही लानत की गई है, खुदा ने उसको अपनी रहमत से दूर कर दिया। तो दोस्तों, अब इल्म हम पढ़ लें और हमारे अंदर तकब्बुर आ जाए, हम खुद पिसंद बन जाएं और फिर हम जो है औरों को कमतर समझें, अपने आप को बेहतर समझें, अपनी खामियां में नज़र ना आए, अपनी गलतियां हमें अच्छी लगें, सही लगे, तो ये इल्म जो है वो फिर इल्म जो है महरूमी का सबब बन गए। तो इल्म हासिल करने के साथ जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा को लक़ब मिला था सोबत, सहाबा यानी सोबत करने वाले, जैसे हम सब आज मिलकर बैठे, ये सोबत भी एक इल्म हासिल करने का ज़रिया है। आप दुनिया घूमते चले गए, एक मुल्क में दूसरे मुल्क में मुख्तलिफ लोगों से मिले, उनसे बातें की, ये भी इल्म है। नई नई जगहें देखी, ये भी इल्म है। बहरहाल, तो उम्मीद है कि हमारे बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करेंगे और कुरान मजीद पढ़ें, कुरान मजीद का जो पैगाम है उसको हम समझने पर ज़्यादा तवज्जो दें। कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया उसको समझने पर हम ज़्यादा तवज्जो दें। ये जो तकरीर करने वाले लोग हैं हम जैसे, वो सीधे सीधे चंद आयतों के टुकड़े सुनाते हैं, फिर उस पर वो पूरी इमारत खड़ी कर देते हैं। वो पता नहीं कितना उसमें खुदा का फरमान होता है, कितना उसमें मेरा अपना ख्याल होता है। फिर हम वो जो एक आयत पढ़कर जो शुरू होता है, तो फिर हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें खुदा की तरफ से हैं। तो दोस्तों, इसमें फ़र्क होना है, हमें आना, फ़र्क समझना चाहिए। और वो जो बैठा हुआ है और लोगों को वाइज़ और तकरीर सुना रहा है, उसकी अपनी तरबियत नहीं हुई, उसने खुद अदब नहीं सीखा और वो खुद पिसंदी और तकब्बुर को अभी तक समझ ही नहीं सका। वो तकब्बुर को समझ रहा है कि कोई अच्छी अच्छी बात है, वाकई मुझे इल्म है, मैं तो अच्छा हूँ। तो इसलिए तरबियत और सोहबत जो है ये बड़ी अहम चीज़ है। जो इस तरीक़त में जो कि आजिज़ का जो ये आजिज़ यहाँ बैठा हुआ है, तरीक़त के हवाले से बैठा हुआ है। आजिज़ की जो गुफ्तगू का जो बुनियाद है वो तरीक़त पर है, जो नक्शबंदी सिलसिले से है, तो उस बुनियाद पर ये गुफ्तगू हो रही है। तो तरीक़त के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, तो उसका जो उसलूब है और जो तरीक़ा है वो अर्ज़ किया जा रहा है। और जो जदीद उलूम हैं उनको हासिल करना बड़ा ज़रूरी है। हमारे बेटे, हमारी बेटियां जदीद उलूम हासिल करें, कुरान मजीद पढ़ें, बुनियादी ज़रूरी मसाइल सीखें। और ये काफ़ी दिनों से यहाँ दोस्तों से गुजारिश की जा रही है कि हर ब्रांच में कुरान मजीद की तालीम का सिलसिला शुरू करें, और न सिर्फ कुरान मजीद की तालीम का सिलसिला हो बल्कि तजवीद क़िराअत भी सिखाएँ। और ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ तजवीद क़िराअत अगर 2 सीखे हैं तो फिर वो कुरान मजीद की माना मफ़हूम सीखने की कोशिश करें। सबसे बेहतरीन तरीका ये कि अरबी सीखें, अरबी सीखें, कोई इसमें मसला नहीं है। तो इसलिए सीखें ताकि कुरान मजीद को आप समझ सकें। तो कुरान मजीद एक इतना खूबसूरत पैगाम है जिसको पूरी तरह पढ़कर समझने की हमें ज़रूरत है। हमारे मिजाज को सीधा कर देता है। तो हम उम्मीद करते हैं आखिर में तरीके ज़िक्र है, यहाँ दिल है, दिल में तवज्जो रखें। खड़े बैठे लेटे सोए जागे हर वक्त दिल ज़िक्र कर रहा है, अल्लाह 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 अल्लाह। सांस आता जाता रहे, ज़बान खामोश रहे, तवज्जो दिल में रहे, दिल ज़िक्र कर रहा है, अल्लाह 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 अल्लाह। ये मश्क करें, ये मेहनत करें मुसलसल।
इंशाअल्लाह हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से, मुर्शिद कामिल की सोबत के असर से दिल ज़िक्र में जारी हो जाएगा। फिर 24 घंटे अल्लाह ताला की याद इस दिल में रहेगी, और जब अल्लाह ताला को याद फरमाएंगे तो अल्लाह ताला याद फरमाएगा। इससे बड़ी इज़्ज़त और मकाम और मर्तबा कुछ नहीं। तो ये कोई शर्त नहीं है ज़िक्र के लिए, सब दोस्तों को इजाज़त है, वज़ू हो या ना हो, दोनों सूरतों में ज़िक्र कल भी करें। कपड़े पाक हो या न हो, दोनों सूरतों में कल भी ज़िक्र कर सकते हैं, करें। जिस्म पाक हो या पाक ना हो, दोनों सूरतों में, यानी कोई भी सूरत हाल कल भी ज़िक्र से माने नहीं है, करें ज़िक्र सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक। तो ये जब भी याद आए ये सबक पकाते रहें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये गोया दिल की तरफ जैसे घड़ी देखते हैं, हमें टाइम मालूम हो जाता है, दिल की तरफ तवज्जो जाए तो अल्लाह ताला याद आ जाए। तो ये मश्क करने से होता है। फिर मुर्शिद के साथ निस्बत और राब्ता इसका आसान रास्ता है। ये अकरब तुर्क यानी सब रास्तों में से नक्शबंदी सिलसिले को करीब तरीन रास्ता और आसान तरीन रास्ता कहा है। मुराकबा करें, हम सब नमाज पंजगाना अदा करें, रमज़ान के रोज़े रखें, खुदा न खास्ता किसी को तकलीफ़ है तो डॉक्टर से मशवरे के मुताबिक अमल करें। ज़कात जिस किसी पर वाजिब है वो ज़कात अदा करें, जिस पर हज फ़र्ज़ है वो हज अदा करें। अल्लाह ताला आप सबको तौफ़ीक़ दे।